Now, Bismillahirrahmanirrahim, and today we are going to work on our and this new topic that we are going to discuss today is the speaking question of PTE exam, and today's lecture is concerned with retell the lecture. First, we will understand what the retell lecture is, and then I will be proceeding further for the explanation and the practice as well. So now when we talk about retell the lecture, जब हम retell the lecture के बारे में बात करते हैं तो जो basic understanding हमें होनी चाहिए है retell the lecture के बारे में, that basic understanding is that retell lecture है क्या. अगर हम retell the lecture को देखें तो retell lecture is actually a question of the speaking section, and there will be 3 questions on an average in exam. These question total may vary, but 2 to 3 questions on an average are the questions in the real exam. 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में would be a quantity of the total number of retell lecture questions. 21 नंबर हैं इस एक सवाल के. 21 numbers में से 20 out of 21, 11 marks go towards the speaking exam and 9 marks go towards the listening exam. So total there are 21 marks, and out of these 21 marks, 11 go for the speaking and 9 marks, those go for the listening section. If we talk about the grid of the marks, on the grid, this question, which is known as retell the lecture, is known as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th highest marks question of PTE exam in total. So 8वां सबसे बड़ा question है by its numbers, and 3 to 4 questions on an average हमारे exam में आ सकते हैं, and it is what the distribution of the marks, and it is what the distribution of the question in total, and again the list of the marks standing in PTE exam as well. अब हम जाएंगे देखने के लिए कि रीटेल द लेक्चर है क्या, और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. रीटेल द लेक्चर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें हमें 60 सेकंड से लेके 90 सेकंड तक की एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है. ये 60 सेकंड से लेके 90 सेकंड तक की जो रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, इस स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग में जो हम सुन रहे हैं, इस स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग के अंदर there will be some information, and this information may relate to some event, some medicine, some sport, some general topic, or it can even be a simple discussion, a simple information sharing. So जो हम recording सुनते हैं, उस recording के अंदर हम किसी event, किसी medicine, किसी sports, general topic, और simple किसी एक स्पेसिफिक इवेंट नहीं होगा, एक स्पेसिफिक रिलेशन में एक इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, एंड दिस गोज फॉर 60 सेकंड टू 90 सेकंड. 60 सेकंड से लेके 90 तक सेकंड की इस रिकॉर्डिंग के खत्म होने के बाद वी आर गिवन 10 सेकंड्स गैप, एंड आफ्टर 10 सेकंड्स वी आर गिवन 40 seconds in total after the beep, and then we have to record the answer in the next 40 seconds. So what is the model of the question? The model of the question is that first of all हम क्या सुनते हैं, हम 60 to 90 seconds का एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं. 60 से 90 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग के बाद 10 सेकंड का गैप है, and then B tells us that now the time for recording, and 40 seconds होते हैं हमारे पास अपना आंसर रिकॉर्ड करने के लिए. अगर हम मॉडल को यहाँ तक समझें तो एक चीज हम समझ गए, what that thing is, that हमने जो 90 seconds को सुनना है, 90 सेकंड को सुनना है और 40 सेकंड्स में हमने आंसर करना है, तो वन थिंग इज क्वाइट श्योर दैट वी आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस अप टू 40% to 45% इन टोटल. सो फर्स्ट कॉमन एरर दैट पीपल ट्राई, कि जब वो ये चल रहा होता है, और अभी मैं आगे जब बात करूंगा कि हाउ टू इफेक्टिवली आंसर द क्वेश्चन, हम जब ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो इस रिकॉर्डिंग को सुनने के साथ साथ हम उस क्लिप बोर्ड पे जो हमें एग्जाम में मिलता है अपने बॉल पॉइंट से हिंट्स लिख रहे होते हैं कि इस लेक्चर में क्या क्या सुना. अब जब हम हिंट्स लिख रहे होते हैं तो पीपल गो मैड एंड दे ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी लाइन, और वही सबसे बड़ा एरर है. हमें इस रिकॉर्डिंग को सुनते वक्त हर एक लाइन को नोट नहीं करना है, बिकॉज बोलने वाले की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है लिखने वाले से, और जब हमें 40 सेकंड्स में आंसर करना है और 90 सेकंड सुनना है, तो वन थिंग इज क्वाइट क्लियर. What that clear thing is? That clear thing is that हमने जो रिप्रोड्यूस करना है वो सिर्फ 40 से 45% होगा उस टोटल का जो हम सुनेंगे 90 सेकंड्स में. तो इसलिए अपने आप को इस क्वेश्चन के लिए मेंटली टफ करना बहुत जरूरी है.
अपने आप को मेंटली टफ करना बहुत जरूरी है। इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है दैट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एज एन हिंट ईच एंड एवरीथिंग दैट वी लिसन। हमें सिर्फ क्या लिखना होगा, हमें लिखने हैं कीवर्ड्स। व्हाट कीवर्ड्स वुड बी, कीवर्ड्स क्या होंगे? Keywords are number one. Keywords are the big words. Like for an example, today we are going to discuss something about the solar system. तो हमें एक word मिल गया. The lecture was about the solar system. Today we are going to talk about a survey that was conducted upon the CEOs of the bigger firms. So it is what the lecture was about, survey. हम जब सुनेंगे रिकॉर्डिंग को तो देयर विल बी सम डेट्स, देयर विल बी सम ईयर्स, इवेंट, फिगर्स, नेम्स, ये सारी साथ साथ चलेंगी। ये सारी चीजें जो बिग वर्ड्स की सूरत में हमारे साथ साथ चल रही होंगी, हमने इनको नोट करना। हमें जब आंसर को रिप्रोड्यूस करना है तो हमें उसके दौरान इन सारे फैक्ट्स को, फिगर्स को, नेम्स को, ईयर्स को, इवेंट्स को और लेक्चर का कोर जो पहले सेंटेंस में आता है, that we are going to share our research, we are going to share a survey, we are going to discuss the overall network of the solar system, वो जो पहली लाइन में वो टॉपिक बताता है, हमने उनको हाईलाइट करना है। एंड दीज ऑल वर्ड्स आर नोन एज द कीवर्ड, जिनको आप सुनने के दौरान अपने क्लिपबोर्ड पे लिखेंगे। जब हम इन कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, देन हम जब आंसर करें वी हैव टू ऑप्शन। एक बात याद रखिएगा, स्पीकिंग क्वेश्चन में बार बार एक बात बताना मुनासिब नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब भी आप बात करेंगे इस क्वेश्चन की मार्किंग फिर तीन ही बेसिस होंगे स्पीकिंग के हर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वन इज द कंटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द कंटेंट? कंटेंट मींस द वर्ड दैट यू हैव लिसन्ड, इंफॉर्मेशन दैट यू हैव लिसन्ड। तो जब हम बात करते हैं कंटेंट की, तो वही जवाब देना है जो आपने सुनना है। इफ द लेक्चर वाज अबाउट द सोलर सिस्टम, वी कैन नॉट से द लेक्चर इज अबाउट द सन एंड मून, वी हैव टू से द लेक्चर इज अबाउट द सोलर सिस्टम। हमने सिनोनिम्स नहीं बनाने हैं, हमने सिमिलर मीनिंग वर्ड्स नहीं बनाने हैं। We have to reproduce what we have listened, but in a summarized form. Clear? So content will be the words that we listen, means the information that we listen. Number two, the second thing is after the content, the second thing is the pronunciation. The pronunciation. अब जब हमने बोलना है ना, तो वी हैव टू एग्जैक्टली स्पीक व्हाट वी हैव टू स्पीक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉइस ऑफ द वर्ड। अगर फॉर एन एग्जांपल हमने सुना है सोलर, इट शुड नॉट बी सूलर बिकॉज इट विल बी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सो इफ देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ for an example, my mother language, for an example, some people say friend as a friend, so we are not to say friend as a friend, we have to say friend as a friend. We talk about the French people, they talk about yes, जब वो yes बोलते हैं तो बोलते हैं yes, so we are not to speak yes, we have to speak yes. तो हमें हर वर्ड की करेक्ट इंग्लिश साउंड को बोलना है। हम अगर करेक्ट इंग्लिश साउंड को नहीं बोलेंगे, दिस विल टर्न इनटू अ प्रोनाउंसिएशन एरर, और ये प्रोनाउंसिएशन एरर विल रियली लीड टू अ डिजास्टर। और डिजास्टर क्या होगा? दैट डिजास्टर विल बी दैट हमारे नंबर्स कट जाएंगे, ओवरऑल हम उतने नंबर नहीं ले पाएंगे जितने हमें लेने चाहिए हैं। So second marking criteria is the correct phonics, means the correct voice of the word. And number three, जो तीसरी चीज है, and one of the most important thing, and that is known as the fluency, जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि तेज बोलना फ्लुएंसी कहलाता है। याद रखिएगा, तेज बोलना कभी भी फ्लुएंसी नहीं कहलाता। Fluency means speaking consistently, speaking consistently. We are not to speak with. So now the biggest wrong people do in the retail lecture, fluency, they try to speak with an overspeed. याद रखिएगा, about 150 to 160 words are the best words to be spoken out in front of the examiner. And for examiner, when we talk about the PTE retail the lecture, याद रखिएगा, PTE में 4 नवंबर 2024 के बाद now a human examiner has been added. एक human examiner add कर दिया गया है। ये ह्यूमन एग्जामिनर जो ऐड कर दिया गया है, ये ह्यूमन एग्जामिनर आपके जो आंसर्स हैं, खास करके डिस्क्राइब इमेज एंड साथ रीटेल द लेक्चर, उसको अगर आप एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहे होंगे, जैसे कि हम यूट्यूब के टेम्पलेट से करते हैं, तो आपके आंसर को फ्लैग कर देगा। अगर आपके आंसर को फ्लैग कर देता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस कंप्यूटर मार्किंग सिस्टम, तो ह्यूमन एग्जामिनर फिर उसको रिव्यू करके आपको मार्क्स देगा। एंड यू पीपल विल खुदा ना खास्ता स्ट्रक इनटू अ ट्रबल। सो प्लीज स्टॉप मेकिंग जोक्स ऑफ योरसेल्फ एंड स्टॉप मेकिंग द टेम्पलेट्स, यूज ऑफ टेम्पलेट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर। बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं, बट अपना तरीका होना चाहिए।
So first thing that we have to work on is the content, second is the pronunciation, and third thing जो marking criteria में आएगी that is the fluency. Fluency का मतलब तेज बोलना नहीं है, consistent बोलना है without taking long pauses. Long pauses से मुराद ये है कि आप किसी word पे जाके रुक जाएं and there is a silence of 1 second. तो 1 सेकंड की साइलेंस आ जाए, दिस विल बी नोन एज अ पॉज. 2 सेकंड लॉन्गर पॉज, 3 सेकंड रुकेंगे तो माइक को वो लॉक कर देगा. और अब आप अगर बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहे हैं तो 3 से 4 दफा जब रिपीट कर चुकेंगे तो वो फिर भी आपके माइक को लॉक कर देगा. तो काइंडली इसको कंसीडर कीजिए. हमें कोशिश करनी है कि जैसे मैं बता रहा हूँ इसके मुताबिक हमें आंसर करना है. एंड कोशिश करें कि आंसर को ऐसे डिजाइन कर लें कि लगे ना कि आपने टेम्पलेट्स याद किए हैं. यू कैन यूज द टेम्पलेट but modernize the template according to the changing requirements. So now how to answer. जब हमने कीवर्ड नोट कर लिए, अपने क्लिपबोर्ड के ऊपर कीवर्ड नोट कर लिए एग्जाम में, so now what we have to do. अगर तो हमारा टारगेट है 50 नंबर लेना तो हमें इस टेम्पलेट को रिपीट कर सकते हैं. और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप समझते हैं कि हम बिल्कुल नॉलेजफुल नहीं है, बिल्कुल नहीं बोल सकते, we can use the template. The lecture was about and then keyword number 1 solar system. The lecture was about and the keyword number 2 sun. Keyword number 3, lecture was about moon. The lecture was about the inner planet. The lecture was about the outer planet. The lecture was about the water. The lecture was about the human. The lecture was about the cosmic system. I'm saying that if you want to make marks anything lesser than 50% and you want to take the risk कि आपका माइक भी लॉक कर दे, तो फिर उस सूरत में या फ्लैग कर दे, तो you can use the template जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है. द लेक्चर वाज अबाउट, द लेक्चर वाज अबाउट, द लेक्चर वाज अबाउट, और साथ आपने कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3 अटैच कर. मगर अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स बेहतर हो जाए एंड दीज शुड गो अबाउट 70 नंबर्स और 70 प्लस हो जाए, व्हाट शुड वी डू. द लेक्चर वाज अबाउट कीवर्ड नंबर 1, कीवर्ड नंबर 2, कीवर्ड नंबर 3. मिसाल के तौर पे हमने एक लेक्चर सुना, हमारा पहला वर्ड था सोलर सिस्टम. हमने सबसे पहले लिखा सोलर सिस्टम, फिर हमने लिखा the lecture was about the sun. then हमने सुना word moon, फिर हमने word सुना moon, and अब फिर हमने word सुना for an example inner planets. फिर हमने नाम सुना है inner planets के बारे में, हमने लिखा है colder. फिर हमने सुना है like Jupiter. अब देखें हमने जुपिटर, ये हमने 6 वर्ड्स लिखे हैं. अब अगर आप 70 प्लस के टेम्पलेट पे जाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे पहला सेंटेंस. द लेक्चर वाज अबाउट द सोलर सिस्टम विद सन एंड मून. द लेक्चर वाज आल्सो अबाउट द इनर प्लैनेट्स व्हिच आर कोल्डर लाइक जुपिटर. द लेक्चरर इन्फॉर्म्ड अबाउट. अब अगले 3 वर्ड्स. इस तरह से अगर हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, एंड इफ दीज कीवर्ड्स गो बियॉन्ड 9 से पीछे चले जाते हैं, we can use the word. The lecture was about keyword 1 to 3. The lecture was also about keyword 4, 5, 6. The lecture informed about keyword 7, 8, 9. The lecturer also informed about keyword number 10 and keyword number 11 and keyword number 12. Okay, and then अभी भी आपके पास कीवर्ड बच गए, I also listened the information relating to I also listened the information relating to, और फिर जितने keywords बच गए, keyword 13, keyword 14, keyword 15. तो इस तरह से हमने उसको अपने लेक्चर को कंक्लूड किया. So now what I'm saying that if you want to take good score, जो कि सबका right भी है और सबको उसके लिए effort भी करनी चाहिए. The lecture was about keyword number 1, 2 and 3. The lecture was also about keyword number 4, 5 and 6. And the lecturer informed about keyword number 7, 8 and 9. The lecturer also informed about keyword number 10, 11 and 12. And then I also listened the information relating to keyword number 13, 14, 15 जैसे भी हैं आगे आप चलते गए. और जब हम अगर हमारे पास 15 ही है तो 13, 14 and 15. अगर हमारे पास 16 भी है तो 13, 14, 15 and 16. Full stop. The overall lecture was very informative.
एक बात याद रखिएगा, 40 सेकंड बोला है, 40 मिनट नहीं है, 40 सेकंड है। तो कभी कभी आपको ओवरऑल द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव का टाइम नहीं मिलता, तो दिमाग में प्रेशर मत डालिए, याद रखिएगा कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे। कंटेंट पूरा करना जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन के साथ और फ्लुएंसी मींस कंसिस्टेंसी के साथ। आखिरी वाला सेंटेंस, द ओवरऑल लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, विल नॉट गिव यू इवन अ सिंगल नंबर, सवाए कि आपकी फ्लुएंसी में आपकी सपोर्ट कर सकता है कि आपने एक अच्छे तरीके से क्लोज कर दिया। पर अगर आपको यही छोड़ना पड़ जाए एंड पे, तो छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आप कीवर्ड्स के साथ खत्म करेंगे तो कंटेंट ऊपर जाएगा। कीवर्ड कंप्रोमाइज मत करिएगा, कीवर्ड के साथ कंटेंट भी ऊपर जाएगा, प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी और कंसिस्टेंसी भी अगर आपकी कीवर्ड के साथ रहती है, तो आखिरी वाला सेंटेंस रह भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इफ यू वांट टू गेट 70 प्लस, what should we do? The lecture was about keyword number 1, 2, and 3. The lecturer informed about keyword number 7, 8, and 9. The lecturer also informed about key number 10, 11, 12. I also listened information relating to keyword 13, 14, and 15. The overall lecture was very informative. याद रखिएगा, अगर आपको कोई बहुत तेज प्रॉम्प्ट आ जाता है और आप उसको पूरा नहीं सुन सकते, आप सिर्फ 8 से 9 कीवर्ड भी निकाल लें तो भी इंशाल्लाह पूरे नंबर कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आपके 1-2 कीवर्ड्स कम है, 3 कीवर्ड्स कम है, आप 15 के बजाय सिर्फ 9 कीवर्ड्स निकाल सके तो क्या कम होगा? कंटेंट कम होगा। आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे कोई फर्क इवन देन भी नहीं पड़ना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। एंड देयर इज नो नीड टू वर्क ऑन, कुछ जगहों पे मैंने सुना है लोग कहते हैं कि 30 सेकंड प्लस का आंसर हो, आंसर शुड बी कंक्रीट एंड कंप्रीहेंसिव। और 25 सेकंड में खत्म हो रहा है या 35 सेकंड में, दैट डज नॉट मेक द सेंस। आप जितना कम बोलेंगे ऑब्वियसली आप कंटेंट को श्रिंक करेंगे और कंटेंट के नंबर गिरना शुरू हो जाएंगे। सो टेक अ कंसिडरेबल कंटेंट, और जब भी नोट करें वर्ड में करें, सेंटेंसेस में नहीं। जब आप सुने तो वर्ड में कंटेंट नोट करें, सेंटेंसेस में नहीं। आप जब वर्ड में नोट करेंगे तो फिर उसको हम अपने बनाए हुए टेम्पलेट के सेंटेंसेस में ऐड कर देंगे। मैंने सेंटेंस जो टेम्पलेट सेंटेंसेस है उनको ज्यादा चेंज नहीं किया ताकि आप लोगों की फ्लुएंसी डिस्टर्ब ना हो। द लेक्चर वाज अबाउट, द लेक्चर वाज आल्सो अबाउट, तो आल्सो के साथ तकरीबन एक जैसे ही दोनों जुमले हैं। एंड देन द लेक्चरर इन्फॉर्म्ड अबाउट, एंड देन द लेक्चर आल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट, ताकि आपकी फ्लुएंसी का रिदम ना टूटे। आप हर दफा एक डिफरेंट सेंटेंस बनाएंगे अगर, जो कि बनाना चाहिए टेक्निकली, मगर आप हर दफा अगर डिफरेंट सेंटेंस बनाएंगे, द लेक्चर वाज अबाउट, है ना, द लेक्चरर इन्फॉर्म्ड अबाउट, द डेटा वाज कंसिस्टेंट, द डेटा वाज रिलेटिंग टू। अब हर दफा जब हर कीवर्ड के लिए या बंच ऑफ कीवर्ड्स के लिए नया सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी फ्लुएंसी ब्रेक करेगी, बिकॉज वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स। तो हमें ऐसा टेम्पलेट बनाना है जिससे हम यूनिक भी हों, डिफरेंट भी हों, रिपीटिशन भी ना हो और हमारी कंसिस्टेंसी यानी कि फ्लुएंसी भी ब्रेक ना करे। सो लेक्चर वाज अबाउट, the lecture was also about, the lecturer informed, the lecturer also informed, and then the lecture was overall very informative. अगर बढ़ जाए content तो I also listened the information relating to, and then आखिर में the overall lecture was very informative. So go on the software, हम एक प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने से हमें अंदाजा होगा कि हम लोगों ने कैसे एग्जाम में हिंटिंग को लेके चलना। Now we are on the question now, and listen carefully how to write the hints. Actually, that is what I want for you people now. Today, we're going to delve into the fascinating realm of our solar system. So now what you have listened, the solar system. So the lecture was about the solar system. We have given a hint, solar system. Okay, he was saying that today we are going to work on the fascinating word of the solar system. तो हमने यहाँ पे लिख दिया solar system. हमने sentences नहीं लिखने हैं. Is it fine? And try कि आप जब बना रहे हो hints तो इतने तेज राइटिंग में ना लिखें कि बात को खुद को ही समझ ना आ रहे हो। So हमने 3-3 कीवर्ड्स के बंच में बनाने हैं अपने जो है कीवर्ड्स, ताकि हम एक एक सेंटेंस में 3 को ऐड अप कर सके। ओके, सो नाउ लिसन अहेड। Imagine a vast cosmic neighborhood with the sun at its center and planets, moons, and other celestial bodies orbiting around it. कहता है अब देखें कि उसके इर्द गिर्द जो जो कुछ है उसने सबके नाम लिए। अब जो लोग हर एक चीज लिखने की कोशिश करते हैं, दे कैन नॉट राइट इवन अ सिंगल थिंग। 2 वर्ड्स बड़े क्लियर थे। व्हाट वर दोस वर? सन एंड नंबर 3 मून। इज इट डन? तो 3 का एक बंच बन गया। क्लियर है नॉट? सिंगल सेंटेंस लिखने, सिंगल वर्ड लिख के चलना एग्जाम में। चलिए आगे।
solar system consists of 8 planets. So no, was that important? Answer is yes, that was important. What is that? 8 planets. Okay. तो हम हिंटिंग कर रहे हैं, हम स्पेलिंग नहीं देख रहे, बिकॉज स्पेलिंग के कोई नंबर नहीं है स्पीकिंग का एग्जाम है. ओके, हिंटिंग बस इतनी कर लें कि आपको अपनी लिखाई समझ में आ जाए. प्लैनेट्स. Let's start with the inner planets: Mercury, Venus, Earth, and Mars. अब पहली बात उसने क्या की? इनर प्लैनेट्स, है ना जी, 8 प्लैनेट्स. स्टार्ट विद द इनर प्लैनेट्स. ओके, इनर प्लैनेट्स लाइक अर्थ, मर्करी एंड वॉल्स. ठीक, अर्थ, मर्करी एंड मार्स. आपको समझ में आया अर्थ, आपको समझ में आया मर्करी, नहीं समझ में आया मार्स. क्लियर? आपने लिख दिया मार्स. इज इट फाइन जी? सो सेकंड बंच बन गया. चलें. These rocky planets are relatively smaller and closer to the sun. तो वो कहते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? स्मॉलर भी हैं एंड क्लोजर टू द सन. स्मॉलर, क्लोजर टू सन. इज इट डन जी? चलिए. Moving outward, we encounter the gas giants, Jupiter and Saturn. ओके, अब कहते हैं मूव करते हैं आउटसाइड पर. अब यहाँ पे इनर था ना, अब आउटर साइड है. आउटर साइड, आउटर साइड. नीचे क्या लिखा हुआ है? विच आर आउट, मूविंग आउटसाइड. when we move outside. अब आउटसाइड के लिए उसने कौन से वर्ड यूज किए? I'm repeating again. Gas giants, Jupiter and Saturn. Okay, so now outside. And these are the gas giants. Gas giants and gas joints. Joints है बड़ी चीज को. Gas joints. आगे चले. Gas joints like Jupiter. आपको एक वर्ड समझ में आया? काफी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. These enormous planets are mainly composed of hydrogen and helium. Okay, ये बने होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम के साथ. हमने लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन and helium. Okay, do not care about the spellings. Okay, helium. आगे चलिए. And have impressive rings surrounding them. Beyond Jupiter and Saturn, we find the ice giants Uranus and Neptune. These planets. Okay, so now इसके बाहर जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? Ice giants. Ice giants. है ना? और इसमें उसने क्या बोला? मर्करी, चर्च, मर्करी एंड वीनस. ओके, चलिए. अब हमने 1 2 3 4 5 अप टू 10 11 लिख चुके हैं. नो, फील रिलैक्स. एक भी नहीं लिखते इसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Planets are colder and have a different composition compared to the gas giants. Okay, और इसके बारे में उससे एक बात और बताई. Ice giants like Mercury and Venus, they are colder. वो ठंडे भी हैं. शाबाश. Each planet has its own unique characteristics. Earth, for instance, is the only known planet with abundant liquid water, essential for life as we know it. Okay, अब वो कहते हैं हर planet की अपनी unique characteristics हैं. Like every planet has its own characteristics, और फिर own characteristics like वो नीचे कह रहा है Earth that has the abundant, that has an abundant water. चलिए जी. Do not think about the spelling during writing. The same is the way. I'm not caring about the spelling. Just write what you are listening. Moons, asteroids, and comets also play significant roles in our solar system, influencing planetary activities and providing valuable insights into its formation. In conclusion, our solar system is a captivating blend of diverse celestial bodies, each with its own story to tell. The more we explore, the more we uncover the wonders of the cosmos. अब देखिए, मैंने आखिर में जानबूझ के 15 सेकंड को छोड़ दिया, क्योंकि आपसे अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कॉन्फिडेंस आ जाए. ओके, एंड पे क्या बोला?
Conclusion क्या है? Conclusion is that every planet has its own story to tell, or its own story to tell. Okay, so it is what we have listened. So now we are going to answer, and how we should answer like a student जो अभी सीख रहा है, अभी काम कर रहा है, अभी ग्रिप कर रहा है. Okay, so software is being reoperated. तो देखिए 3 सेकंड के Good day, बाद everyone. Today we're going to रिकॉर्डिंग delve हैज स्टार्टेड. जैसी रिकॉर्डिंग खत्म होएगी एक बीप की आवाज आएगी एंड देन वी हैव टू सबमिट द आंसर. मैं स्किप करने चाह रहा हूं एंड देन आई विल बी आंसरिंग. बहुत ही आराम से 150 to 160 वुड बी अ वेरी गुड फ्लुएंसी स्पीड. बिल्कुल जल्दी करने की कतन भी कोई जरूरत नहीं. सो आई एम प्रिपेयरिंग माय लेक्चर फॉर अ मोमेंट. चलिए. hydrogen and helium and have impressive rings surrounding them. Beyond Jupiter and Saturn. The lecture was about the solar system with sun and moon. The lecture was also about the 8 planets, like the inner planets which contain Earth, Mars, which are smaller and closer to sun. The lecture informed about the outer side planets, which are known as the gas giants like Jupiter and contain more hydrogen and helium. The lecturer also informed about the ice giants like Mercury and Venus, which are colder. I also listened the information relating to every specific planet's characteristics, like Earth has an abundant water. In conclusion, every planet has its own story to tell. हमारे पास टाइम नहीं था. What I did? I did not say that overall lecture was very informative. What is the reason of it? Because अगर मैं उसको बोलने के चक्कर में होता तो मैं शायद अपने कंटेंट को कम कर देता. So that is very helpful जब मेरा ओवरऑल कंटेंट जो है मुझसे ज्यादा कीवर्ड्स को पकड़ने नहीं हुआ. एंड देन दैट वन सेंटेंस विल बी एडिंग टू माय फ्लुएंसी एंड देन मैं थोड़ा सा अपना आंसर बेहतर कर सकता हूं. Submit it for score now and see what the score is. So we did like a practicing student. Now see, it is the answer. So now see, it is the answer that we have designed. If you see, there are all green words. So by controlled speed, we did not make any any error of the grammar or any specific error of the pronunciation, and we did not try to overspeed. हमने content and pronunciation को focus करके एक prompt बनाया. याद रखिएगा, content pronunciation को focus कीजिए. Fluency 5, 7, 10, 15 questions के बाद बन जाएगी इंशाल्लाह. And if you go down, speed it at 155, 54 words per minute. If you talk about the content, complete marks हैं, pronunciation में complete marks हैं. 3 marks आए आपके fluency में because हम थोड़ा slow बोल रहे थे. We were in the practice. अब हम अपनी स्पीड को थोड़ा एनहांस करेंगे ताकि हम लोग अपने टारगेट पे पहुंचे ऑफ टेकिंग द गुड मार्क्स एंड एनहांस द मार्क्स. सो हम इसको रिपीट कर रहे हैं और रिपीट में हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा एनहांस कर देंगे. Good day, everyone. Today we're going to delve into the fascinating realm of our solar system. The lecture was about the solar system, sun and moon. The lecture was also about the 8 planets, like inner planets, Earth, Mars, which are smaller and closer to sun. The lecturer informed about the outer side planets, like the gas giants, Jupiter, which contains helium and the hydrogen gases. The lecturer also informed about the ice giants, which are colder, like Mercury and the Venus. I also listened the information relating to every specific planet characteristics, like Earth contains the abundant water. In conclusion, every specific planet has its own story to tell. Overall, the lecture was very informative. So what I did, I enhanced the speed a bit now. मैंने 20% को add किया उस student की तरफ जो बिल्कुल exam के top पे पहुंचा. And now we see that what the score is. Now, when we enhance the speed, now where we are now, we have at 5 in the content, 5 in pronunciation, and 5 in the fluency. Okay, so do not consider fluency in the start. Content and the pronunciation should be the basic things that you have to work on. Is it fine? So now, अब वो बच्चा जो अपने हाथ से अपने नंबर जाया करता है, वो बच्चा होता है जो ओवर स्पीडिंग करता है. उसको किसी ने ये बताया होता है कि आपकी फ्लुएंसी मींस इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द वर्ड्स. उसमें प्रोनाउंसिएशन के एरर्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे बिकॉज वर्ड्स स्लिप फ्रॉम द माउथ.
प्रोनाउंसिएशन खराब होगी, कंटेंट खुद ही गिर जाएगा, एंड फ्लुएंसी में भी नंबर नहीं आएंगे. सो आई एम गोइंग टू मेक दैट स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन. Consists of 8 planets. अब मैं Let's तेज start बोलने with जा the रहा हूँ. inner planets. Mercury, The lecture was about the solar system, sun and moon. The lecture was about the 8 planets, inner Earth, smaller planets like which are closer to sun. The lecture is about the outer planets like gas giant, Jupiter, hydrogen, and helium. The lecture informed about the ice giant like Mercury, Venus, and which are colder. The lecture also informed about the every planet characteristics like abundant water at the Earth. In conclusion, every planet had its own story to tell. Overall, the lecture was very informative. What I did, it is what the common error student make an exam. Okay, so I have given everything in my answer. Only one thing I changed. What that was that मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा के 200 प्लस पे कर दिया. एंड मैंने जो पहले आंसर 35 सेकंड्स में रिकॉर्ड करवाया था, अब मैंने वही कंटेंट 25 सेकंड में रिकॉर्ड करवाया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेक माय स्कोर. व्हाट कम्स आउट. नाउ सी, the prompt is overall smaller than before. There is no pronunciation error, कोई redness नहीं है, मगर the overall prompt is very smaller. The overall smaller prompts always give you a bad score. अगर हम नीचे नेट पे जाते हैं नंबर उतनी आया है, but this is not a correct score marking in context of the exam. Okay, so we should maintain a speed of about 170 to 160 to 150 to 170 में वेरिएट करनी चाहिए प्रोनाउंसिएशन के बाद. अच्छी प्रोनाउंसिएशन के लिए फ्लुएंसी, इससे ज्यादा को एनहांस नहीं करना. I hope this will be very optimistic for you, and follow this pattern that I am informed. Inshallah, the score will be very good in your overall PTE exam.